Buenas tardes a todos, familia divina. Feliz de estar en esta tarde especial con todos y todas, nuevamente retomando este espacio maravilloso de todos los martes en el mismo canal. Esta vez, en este mes especial, bueno, tenemos dos celebraciones hoy. La primera es que hoy es el día oficial del homenaje a nuestra querida Dadi Gulzar. Ya hace, creo que 4 años aproximadamente, fue en el 21, el 11 de marzo del 21, y precisamente hace poco estuve en Maduán recorriendo ese memorial de Dadi Gulzar tan hermoso que hay en Chantiban, ese significado tan preciado a sus cualidades, y sentí esa vibración tan especial de estar allí. Así que hoy vamos a comenzar nuestro programa de la Yagya Viva con este homenaje especial a Dadi Gulzar, y luego cuando Ken y Moira regresen a finales de marzo, comienzos de abril, haremos un homenaje un poco más elaborado con ellos. Y después tendremos una clase que Danesh nos ayudó a traducir del hindi para celebrar este mes de la Chakti, el mes internacional de la mujer, que recientemente pasó el día oficial, el día 8, y hoy tendremos una clase muy linda de Dadi Prakashmani que va a hablar a las madres y a las Chaktis. Así que siéntense muy cómodamente, disfruten de esta tarde y luego vamos a compartir en familia. हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठे दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठे दादी गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करती रही भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करती रही भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चली गई हम सब से दूर। चली गई हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादी जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादी जी आपके द्वारा है।
तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है, कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो, हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे, गए आज हम जैसे हार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। Si la pureza tuviera ojos, serían así. Si la inocencia tuviera sonrisa, sería esta. Si la sabiduría tuviera que hablar, tales serían las palabras. Si la humildad tuviera que presentarse, esta sería la manera. Si la espiritualidad tuviera que ser personificada, esta sería la persona. Raj Yogini Dadi Gulzar. Dadi Gulzar, cariñosamente llamada así, su nombre refleja su personalidad como ese jardín divino de fragancia espiritual. Dadi fue un líder internacional reconocido como una maestra y embajadora mundial de paz. Dedicó 85 años de su vida para la práctica intensa del Raja Yoga y la meditación. Dadi Gulzar tenía 9 años cuando reconoció a Dios y su tarea de la transformación del mundo sucedió a través del médium de Brahma Baba. Ella avanzó en un entrenamiento intenso por 14 años, haciendo
la conciencia de alma una manera natural de vivir y desarrollando una conexión profunda con el Padre Supremo, Dios Shiva. Una vez le preguntó Brahma Baba para que fuera a viajar por todo el país y abriera nuevos centros de meditación. Era la combinación del coraje, el humor y la inocencia. Ella caracterizaba todas sus historias al viajar por la India como una mujer joven, protegida solamente por la convicción de que ella era solamente un instrumento de Dios. Esa convicción formó la personalidad de completa claridad y apertura. Ella nunca tuvo máscaras ni mecanismos de defensas, como lo hacemos la mayoría de nosotros. En 1969, cuando Brahma Baba logró su estado completo, Dadi Gulzar se convirtió en el médium elegida por Dios mismo. Su intelecto limpio y claro y su conciencia pura permitió a que millones reconocieran lo invisible, el océano de amor y conocimiento, Dios, que la utilizó para transformar a las almas de los sanskaras Kali Yuga a los sanskaras Satyuga. Sus cualidades divinas y modestia inspiraron a millones de personas para vivir con una vida simple, pacífica y espiritual. Dadi Gulzar siempre tuvo una profunda creencia en el potencial humano para la creación de un mundo perfecto. Desde muy joven, ella tenía visiones divinas del mundo futuro, donde la tecnología, junto con la economía y la estructura política y social, estarían alineados con los valores más elevados humanos, un mundo en donde la armonía, la paz y la prosperidad prevalecieran. Su creencia de que este es el futuro de la humanidad la llevó a todos los continentes del mundo. Con frecuencia escuchamos sobre el mundo donde hay completa armonía y dicha. Algunos lo llaman Atlantis, el cielo, el Edén, el jardín de Alá. Si ese jardín tuviera que ser personificado, ¿quién mejor que Dadi Gulzar? Como todo jardín que actúa como un carruaje de protección, Dadi Gulzar, sin importar cualquier confusión, oscuridad o problema que las personas tuvieran en su mente, un solo momento en su presencia, ella eliminaba todo eso en la mente y lo convertía en diamantes.
Dadi Mohini, Dadi Gulzar, líder espiritual que no tenía seguidores. Sus inspiraciones y vibraciones solamente creaba líderes. Estar en su presencia de amor y poder fue no solamente una inspiración, sino un despertar a una nueva forma de ser, de pensar y vivir, donde la paz, el amor y la armonía y la compasión eran naturales en cada pensamiento, palabra y acción. Dadi Reden Mohini, el ángel, Dadi Gulzar, conectaba a todos con Dios, a cada uno con Dios, a cada uno con Dios. अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। ओम शांति। और गीत की बोल थे, मौन की भाषा जो समझे, अंतर मन में सुख वो पाएगा। तो आप सभी मौन बत्ती में पहुंचे हो। मौन तो दुनिया में बहुत लोग रखते, परंतु मन का मौन, उनकी जो सूक्ष्म शक्ति होती वो लोग नहीं जानते, जो आप सभी माताएं जानते। तो मन का मौन है निरंतर, सुबह शाम दिन रात, उठते बैठते सोते खाते एक शिव बाबा ही निरंतर याद रहे, दूसरा न कोई। तो निरंतर याद का आधार है एक बाबा से ही लौ हो। क्यों? आप लोग खुद प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने जान, जैसे परिवार में बच्चों आज जिस किसी से लव होता, प्यार होता, वो ऑटोमेटिकली याद भी रहता, खींचता। तो ये भी प्यारा बाप जो हमारा सबका कल्याणकारी बाप है, जिसकी महिमा गाते हो, वो बाप प्यार का सागर है। शिव बाबा प्यार का सागर है। शिव बाबा ही हमारा ज्ञान का सागर है। जो शिव बाबा हम सभी को ब्रह्मा बाबा द्वारा इतनी सारी ज्ञान की वर्षा करता है, अथवा ऐसा सर्वशक्तिमान बाप हमें शक्ति देता, तो शक्ति की तब मिलेंगी जब दिल अर्थात सदा निरंतर बुद्धि से एक बाबा से ही लगन होगी। तो जहाँ प्यार होता वहाँ लगन होती, जहाँ लगन होती वहाँ प्यार होता।
तो लगन वाले को याद करना नहीं पड़ता, याद खुद रहता है। और सदा उनकी याद से खुशी आनंद मौज में रहता है। उनको दूसरा कोई याद नहीं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सहज ते सहज योग की भाषा समझाई। अभी भी आप सब योग के क्लास सुने तो सूक्ष्म में आप सभी माताएं भाई इस वक्त इस शांति वन के बेहद आंगन में आप मनसा की यही विशेष सेवा कर रहे हो। मनसा है प्यारे बाबा की लगन, और जब बाबा से लगन हो जाती तो सहज ही उनकी याद खींचती। बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, काम करेंगे, भोजन बनाएंगे तो बाबा 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 की माला सूक्ष्म याद में चलती रहे। परंतु कहा उसका आधार है एक बाबा से सच्ची सच्ची लगन। जैसे माताएं अनुभवी हो कि कैसे घर में रहते तो खास पतियों को याद करते, बच्चों की याद रहेगी। तो थोड़ा बच्चों को होगा तो चिंता हो जाएगी, पर कभी ऐसे भी चिंता माना चिंतन करते कि हम कितना बाबा को प्यार से याद करते, या कभी भूल जाते कभी याद करते। तो बाबा कहते नहीं कि मेरी माताएं बच्चे, मैंने तुम्हें सहज ते सहज, बिल्कुल ऐसा सहज जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बाबा बाबा करते। घर में भी बच्चों को बेटा बाबा को याद करो, बेटा बाबा को, खुद भी बाबा। अगर ये आप सभी यहाँ बैठे हो तो बिल्कुल आप इसी चीज का अभ्यास करो कि जो भी मन का भटकना होता यहाँ वहाँ, उन सभी भटकने को बंद कर अंदर ही अंदर मीठा बाबा, प्यारा बाबा, प्राण बाबा, सुखदाता बाबा, खुशियों का दान देने वाला बाबा, तो बाबा को इतना ही प्यार से याद करो। ये सूक्ष्म याद आप सबको शक्ति देंगे। तो जो भी कमी कमजोरियां हैं आप सब अपने आप को देखो क्या क्या कमजोरियां हैं। जैसे प्रवृत्ति में रहते हो तो कई बातें प्रवृत्ति की, दुनिया की, बहू बेटियों की, समाज की ऊंची नीची आती। तो हमें कई बार ये देखा है
कि ऐसी माताएं कमजोर होती, मैं खास माताओं को कहती, जब कोई बात हुई, बहू बेटा किसी ने कुछ कहा तो उदास हो रोने बैठ जाएंगे। तो आज आप सभी को दादी चाहती है, दादियां भी, इस बच्ची में इतनी शक्ति मन में भरो जो बाबा की सख्त मना है, तुम्हें कभी रोना नहीं है। चाहे कोई मरना हो, चाहे कोई जीना हो, चाहे कोई बुरे भले परिवार में हो, परंतु तुम्हें कभी कभी भी रोना नहीं है, रोना नहीं है। और कभी भी घर में लड़ना झगड़ना नहीं है। कई बार ये रिपोर्ट सुनते, बेटियों को तो करेंगे प्यार, बहुओं को करेंगे क्या क्या कहूँ, लड़ेंगे झगड़ेंगे। उनको बेटियों से अधिक प्यार करो, तब तो कहें कि कितने घर में शांति से रहते। परंतु बेटियों को प्यार करो और बहुओं को लड़ो झगड़ो, निकल जाओ निकल जाओ, ये सभी बातें को बाबा कहते ये है सब दुख देने वाली बात है। तुम्हें कभी भी दुख देने वाली बातें नहीं करनी है। माना ऐसा रोने का स्वभाव हो, लड़ने का हो, ये सब छोड़ के जाना है। एक बाबा एक बाबा एक बाबा याद करता है। सब माताएं जानती मैं हाथ क्या उठवाऊं, कैसे परिवार में रहते हो। बाबा कहते देखो तुम इस समय सब ब्रह्मा बाबा जो हम सभी की बड़ी माँ है। बाबा अपने को ब्रह्मा बाप भी कहलाता, तो फिर ब्रह्मा बाबा अपने को बड़ी माँ भी कहता। तो हम सभी बड़ी माँ ब्रह्मा बाबा के बच्चे बैठे हैं, यहाँ बच्चियां बैठी है। तो हम कहती देखो माताएं कितनी बड़ी सिक्की लदी हो, जो ब्रह्मा बाबा है फिर भी ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो तुम ब्रह्मा बच्चों की माँ हूँ, माँ। तो ब्रह्मा माँ है हमारी माँ, और तुम भी माता है ब्रह्मा बाबा की प्यारी माताएं हो, अथवा कहें ब्रह्मा माँ की मुख संतान माताएं ब्रह्मा कुमारियां बैठी हो। और ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां उनको कहा जिन्हों को ब्रह्मा बाबा ने मुख द्वारा रचा है। और फिर कहते हो ब्रह्मा माँ, एक ब्रह्मा माँ है, एक ब्रह्मा बाप भी है, तो शिव बाबा भी है। ऐसे हम सभी है बेहद बाप दादा की कौन पवित्र ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा कुमारियां माना ही पवित्र।
ब्रह्मा कुमार माना ही पवित्र। तो आप सभी पवित्र माताएं कहें या पवित्र सच्ची सच्ची योगिनिया कहें, योगी 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 योगिनिया हो। योगी नाम तो कई के होते, पर आप सभी योगी हो जिन्हों के दिल में एक बाप दूसरा न कोई। और ऐसी माताएं तो हमने देखा है इतनी अच्छी लगन की होती हो जो अपने टीचर से भी अच्छी होती हो। बस एक बाबा सिवाय कुछ भी नहीं। बीमार भी पड़ेंगी तो भी बाबा 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 करती रहे। और अगर योग में कहो बैठो तो भले वो योग की बहुत सूक्ष्म होती बातें, पर आप उन सूक्ष्म को भी छोड़ो। बस मन में एक साल बाबा याद रहता, उसका नाम है मोमबत्ती। तो आप सबको मोमबत्ती में बुलाया। मोमबत्ती का अर्थ ही है कि मन के संकल्प में भी आप बाबा के सिवा कोई याद नहीं करो। कोई याद आना माना व्यर्थ संकल्प हुआ। तो आप सब इस व्यर्थ संकल्पों को छोड़ बाबा की शक्ति ले जाओ। सन्यासी आद तो हठ योग करते, पर आप हमारी मीठी बोली भाली बाबा की माताओं को क्या हठ योग सिखावे? कौन सा हठ योग करो? प्राणायाम चढ़ाओ, एक टांग पर बैठो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। परंतु सच्ची लगन से अगर आप ही बाबा की सच्ची सच्ची खुद को समझो। क्या समझो? एक तो हम है सच्ची सच्ची साजन की सजनिया। सजनियों को साजन याद है। हम है सच्ची सच्ची राम की सीताएं। हम है सच्ची सच्ची गोपी वल्लभ की गोपिकाएं। हम है शिव शक्ति माताओं का अवतार, शक्ति अवतार। हमें कहा गया है शिव की शक्तियां। तो आप सब शक्तियां जिसको कहा गया है पार्वतियां, तो आप ऐसे भोलानाथ शिव की पार्वतियां बैठो। पार्वतियां कहती हूँ तो मुझे एक बात याद आती। दादी बाबा ने एक बार पट्टी कराई योग की, कराची की बात है। तो कहा सभी पार्वतियां हो बैठो। जैसे शिव की पार्वती हिमालय पर बैठ तपस्या की, सुना होगा ना कि पार्वती शिव की हिमालय पर बैठ शिव की याद की तपस्या की। तो बाबा ने कहा आप भी सभी
एक शिव की पार्वतियां हो, एक एक पार्वती हो, तो फिर क्या करो? बाबा ने कहा 12 घंटा शिव को याद करो, बहुत थोड़ा टाइम बीच में उठो। और उसके लिए कहा, उस टाइम साड़ी नहीं पहनते थे, तो कहा साड़ी पहनो। पार्वतियों की तरह चोटा बनाओ। अरे बाबा, चोटा कैसे बने? हाँ, बिल्कुल तपस्या करो, बस शिव बाबा से वह कुछ याद नहीं, ऐसी लगन से बैठो। सचमुच याद आता, ऐसे हम लगन से बैठ गए थे, जो मजाल एक 6-8 घंटे में भी कोई उठे, पानी तक भी पीवे नहीं, सब और गए थे। और बाबा मामा आके ऐसे हमें दृष्टि देके उड़ा के ले गए, और कई उस टाइम ध्यान में चले थे। तो आप सब भी ऐसी भट्टी करो जो बाबा आपकी रस्सी खींच ले और आप इस शरीर से उड़ जाओ, और सूक्ष्म वतन में जा करके शिव साजन से अथवा शिव बाबा से योग लगाओ, उड़ जाओ। पर आप सभी यहाँ बैठ के घर याद है, बहू बेटा याद है, पोता दोता याद है? हाँ? कुछ याद नहीं, पक्का। तो कुछ याद नहीं तो बाबा याद है? बाबा है या बाबा भी याद नहीं? हाँ? बाबा याद है ना? तो बाबा से प्यार है या पोतों दोतों से प्यार है? पूछो, जास्ती प्यार किससे है? पोतों दोतों को छोड़ो नहीं, पर ममता नहीं रखो। तो ये भट्टी आप सबको ये मंत्र सिखाती है। एक तो रोना छोड़ दो, कभी भी रोना नहीं है। बाबा कहेंगे रोना माना, बोलो क्या, विधवा। माना कोई का पति मरता है तब रोते हैं, क्यों? मैं तुम्हारा साजन अमर मिला हूँ, रोते क्यों हो? भूल जाते, अमर साजन को तो नहीं भूलो। दूसरा, ये जो मोह ममता है, तो उस मोह ममता को भी छोड़ो, तब कहेंगे सच्ची सच्ची माताएं शिव की सीताएं हो, पार्वतियां हो, शक्तियां हो। बाबा आया ही है सबको खुशी का दान देने, और हम गोपी वल्लभ की गोपिकाओं का ही गायन है कि गोपी वल्लभ के गोपिकाओं को अति इंद्रिय सुख रहता। तो जिनों को अति इंद्रिय सुख होगा, बाबा सिवाय कुछ याद नहीं। और कितना बाबा सहज दिया है, एक बिंदु ज्योति याद करो बस, और कोई नहीं। घर में भी बच्चों पोतों दोतों को याद करो। तो आप सभी माताएं बाबा के इस बेहद
शांति वन में पहुंचे हो, ऐसा आप सभी यहाँ एक एक बाबा को प्यार से, लगन से याद करो, जो ये सब कमजोरियां खत्म हो जावे। एक तो पक्की पक्की योगिन बनो, अर्थात सीताएं बनो, और एक बाबा के सिवा कोई याद नहीं। और फिर सच्ची पवित्र योगिनियां उनको कहेंगे जिन्होंने पवित्रता की राखी बांधी है। पवित्रता की राखी बांधेंगे तो उनको दादी भी राखी बांधेंगी, सौगात के साथ सबको राखी देंगी, परंतु प्रतिज्ञा होंगी कि राखी बांधते प्रतिज्ञा है एक बाबा, कोई दूसरा नहीं। तो पवित्रता की राखी बांध के जाएंगे, क्यों? बाबा ने कहा है तुम्हारी सबसे पहला व्रत है पवित्रता। ये इसी पर ही कई माताएं, भाई बहने सितम भी सहन करते, घर में लड़ाई झगड़े हो, परंतु पक्की पक्की सीताओं को एक राम के सिवा, चाहे रावण कैसा भी मिला, राम के सिवा कुछ याद नहीं। तो आप सभी को भी ऐसा ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी मन के अंदर किसी के प्रति भी नफरत हो, किसी को भी, किसी भी परिवार के लिए वैर हो, विरोध हो, नफरत हो, तो बाबा कहते यहाँ आए हो सब बुराई छोड़ने। तो ये बुराई छोड़ के सबसे प्यार करना सीखो। हाँ, तो ये नफरत करना, कोई अगर किसी से नफरत करता, ऐसा माना हम मानती उनको बाबा से भी शायद नफरत है। बाबा से नफरत है, तब आपस में एक दो के घर में नफरत करते, आपस में कहाँ भी परिवार में वैर विरोध करते। उनका कभी बाबा से सच्चा प्यार नहीं। इसलिए सच्चे प्यार वाले सबसे मीठा बोलो, मीठा बोलो। बाबा कहते कभी भी कड़वा नहीं बोलो। बाबा की भाषा है कड़वा बोलना माना नमक वाला पानी पीना। तो नमक वाला पानी पिया जाता है क्या? वो तो कुल्ला किया जाता है। तो आप सदी वही प्यार से रहो, नफरत से नहीं। सुना? दूसरा, आप सभी को, माताओं को सदा ये शिव बाबा की याद हो तो दूसरे किसी को भी याद कराओ कि कितना शिव बाबा हमारा भोलानाथ प्यारा है। तो वो अनुभव सुनाओ। एक से एक होगा दो, और एक दो करो तो होगा 3। तो अब तो 4000 आए हो। ऐसी आप सामान बनाओ जो दूसरे साल कोई प्रोग्राम करे तो 4000 के बदली 12000 बुलावे। हाँ दादी,
देखो बाबा ने विशाल भवन दिया है, 12,000 आएंगे, सो जाएंगे, जमीन पड़ी है हालों में। अभी तो पलंग रानी बने हो, फिर पट रानी बने। खुली छुट्टी देती थी तो 50,000 आ जाती थी, 50,000 आ जाती। चलो कभी ऐसा भी मेला करेंगे, जो सभी माताओं को बुलाएंगे, बाबा के इस बेहद मैदान में क्लास करेंगे, और बेहद मैदान में कहेंगे सो जाओ। हाँ भाई, कर सकते हैं ना, हो सकता है। हाँ, बाबा ने शांतिवन बहुत बड़ा दिया, यहाँ वहाँ सब जगह सो जाओ, शांतिवन। ऐसा भी कभी प्रोग्राम बनाए, देखो सारे ब्राह्मण आत्माएं आवे। हाँ, फिर 50,000 माताएं तो 50,000 भाई, पर सोना सबको कट्ठा पट में होगा। भोजन की व्यवस्था भी ऐसी रखेंगे, हल्का। दादी ने रंजना, माताओं को देख दादी को क्यों बहुत खुशी होती, मुझे नहीं खबर। जल्दी जल्दी आगे दादी, आजा, एकदम टाइम पे आ गए। भाई देखो मेरे भाई भी बैठे हैं, आप भाइयों को भी माताओं को देख खुशी होती है। भाई लोग, माताओं को देख खुशी हो रही है, और आप माताओं को देख सब खुश हो रहे हो, सारे खुश हो। तो पक्का करो, आज के बाद कभी भी घर में रोना नहीं है। हाथ उठाओ जो रोएंगे नहीं, पक्की प्रतिज्ञा, रोना बंद, रोना बंद। बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, ऐसे कहते हैं ना। इसलिए अपने को रोना नहीं है, सदैव बाबा से मुस्कुराते हुए रोरहान करो, और बाबा से प्यार की वरदान लियो, प्यार की दुआएं लो। बस इतना ही कहेंगी, जास्ती नहीं, कि बाबा से प्यार की दुआएं लेने वाले हो। दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं लो, ये माता पक्का करके जाओ तो सबके लिए दुआ माना शुभ शुभ। मीठा मीठा, प्यार से बोलो भी, देखो भी, चलो भी, और घर में भी ऐसे सबको रहना है। हाँ, घर में क्या करेंगे, रोएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। जो कहते आज से कभी घर में नहीं लड़ेंगे, शांति प्यार से रहेंगे, वे हाथ उठाओ, एकदम प्यार से। भाई वीडियो निकालो, देखो, हाँ, हाथ उठाओ, जो प्यार से बाबा को याद से घर में रहेंगे, तो जो प्यार से बाबा को याद में रहेंगे, वे घर में भी बाबा का छोटा कमरा बनाएंगे, और वहाँ रोज बाबा को भोग लगाएंगे। तो बाबा को भोग लगाया माना ब्रह्मा भोजन खाया। तो जो माता रोज अपने घर में भोग लगाती है, वे हाथ उठाओ। अरे सब लगाती है, बहुत अच्छा। बाबा को भोग जरूर लगा, बाबा खिलावे, हम बाबा को खिलावे। बिना बाबा को भोग लगाए खाएंगे तो बाबा कहते चोर माने जाएंगे, तो चोर नहीं बनना है। सुना, बाबा को
भाई भोग लगाना। इसलिए आप सभी माताओं का मोमबत्ती चल रही है। चांस मिल जाता विशेष योग बत्ती करने का। योग में ही देखा जाता शक्ति मिलती, और योग से ही अपनी सब कमजोरियों को जाना, रियलाइज किया जाता कि अभी ये कमजोरी है, इसको हमें निकालना है। जो मन का मौन माना, कोई भी बुरे संकल्प नहीं है। और फिर ऐसा भी यहाँ से बत्ती कर जाओ, जो ये मोह ममता, रोना पीटना, घर में झगड़ना करना, सब खत्म। सुना? सब खत्म। खुशी, बहुत खुशी। देखो, आप सभी ऐसे बन जाओ जैसे दुर्गा, काली, सरस्वती, संतोषी। तीर्थ तो करते, लेकिन कौन हो? वो सब शक्तियाँ, आप सब माताएं, सब वो शक्तियाँ। और ऐसी शिव की शक्तियों का ही गायन है मंदिरों में। तो आप सब इतना ही गायन लेके जाओ, तो राखी भी बांधेंगे, फिर जाएंगे तो जन्माष्टमी भी आएंगे। ये सब हमें स्मृति दिलाते, ये हमारे ही यादगार है? हमारे ही यादगार है ना। एक कृष्ण प्रिंस है, या हम सभी भी उनके साथ प्रिंस प्रिंसेस है। भाई सभी प्रिंस प्रिंसेस हो, तो ऐसा बन के जाना है। समझा? समझा? क्या बनेंगे? पक्के पक्के कच्चे? पक्के पक्के बने, सारे पक्के पक्के बने। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बिल्कुल अशरीरी अशरीरी बाबा को पास उड़ जाओ। ओम शांति। Qué linda experiencia, una linda combinación de acuerdo al drama que en este mismo mes coinciden esas dos celebraciones. También vamos a hacer el homenaje a nuestra querida Daddy Yankee, que también fue en este mismo mes, que logró su estado Aviat. Estaremos preparando sorpresas para ese homenaje especial, ya les anunciaremos en su momento. Y bueno, queremos ahora escucharlos a ustedes, hermanos, hermanas, que quieran compartir su reflexión sobre este homenaje a Daddy Gulzar. Quien tenga alguna historia que quiera compartir, puede prender su cámara, activar su micrófono, o también alguna experiencia que haya tenido en este mes especial de la mujer, o con respecto a la clase que dio Daddy Prakash Mani a las madres también, ¿no? Qué instrucciones precisas que da para podernos relacionar en familia, no solamente las madres, sino todas las Shaktis. Ser seres de luz, seres amorosos, dulces, decía Daddy, renunciar a las peleas, al rechazo. Así que bueno, es una linda oportunidad para desarrollar ese Dharna que ella misma nos inspiró, ¿no? También Daddy Prakash Mani con su dulzura y su amor. Bueno, Norma querida, creo que prendiste la cámara. ¿Nos quieres compartir algo? Te escuchamos. O alguien más, quien quiera, puede hablar ahora o escribir en el chat. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, no puedo escribir por mi dificultad visual, pero me ha quedado, estamos juntas con Moraima ahora, escuchando esta hermosa clase, y nos queda muy claro el esfuerzo que hay que hacer para la aceptación de quién somos
y el momento que estamos viviendo en esta etapa del fin de la confluencia. Las pruebas son muy fuertes con las otras almas hermanas y tenemos que vencer con mucho amor esa reacción que nos provoca a veces innecesariamente y que debemos controlar. Es seguramente para nuestro ejercicio de superación. Ese va a ser nuestro esfuerzo. Lo hacíamos ahora, en mi caso, con Moraima, ¿no? Yo le decía, bueno, tenemos que superar estas cosas que nos vienen de la familia y también de la familia Loki, de las amistades, del trabajo, del lugar donde uno vive. La humanidad está pasando este momento tan difícil. Así que esta clase es maravillosa para darnos las herramientas para, como Bapa siempre hace, para salir adelante y superar estas flaquezas que todavía tenemos. Om Shanti. Gracias, Norma querida, qué lindo verte. Gracias por compartir. Y bueno, Daddy Prakashwani también nos decía, ¿no? Que cuando amamos a Baba no tenemos rechazo por nadie. Si hay rechazo por alguien, significa que hay algún rechazo por Baba también. Sin duda. Un reto que nos da, ¿no? Realmente de amar a todos como son, amarnos a nosotros mismos primero y a todos. Y Qué ahora o gran- nunca. Sí, ahora o nunca, no nos queda mucho tiempo. Hay que aprovechar cada momento para progresar. Este es el año de la transformación, ¿no? De acuerdo al calendario chino, el año de la serpiente de madera. Así que hay que avanzar en ese progreso, en esa transformación. Gracias, Norma querida. Y bueno, creo que el tiempo va avanzando y no veo más comentarios aquí en el chat. Entonces, vamos a terminar con un drishti. Invitamos a todos y todas que prendan su cámara y pongamos galería para que podamos recordar juntos a Baba. Mientras Germán nos No pone se una prende la música. cámara. No se me prende la cámara, Juliana. Claro, levanta tu mano. A ver. No, Moraima habla. No se abre la cámara mía. Debe ser tu dispositivo porque hay otras almas que sí tienen. Sí, yo veo que sí, pero la mía se está bloqueada, no se abre. Bueno, gracias, Juliana, lindo, muy hermosa clase. Shanti. A Bueno, no ti, abro porque no gracias. puedo, no que no quiera. A mí me gusta abrir Ay, la qué cámara. linda. Bueno, un abrazo de luz para ti. Gracias por estar. Gracias a ti. Tan linda siempre. Om Shanti, familia querida. Om Gracias, gracias, Shanti, Om Germán. Shanti, Om Madres Shanti. divinas, poderosas, almas chaktis. Gracias, nos vamos. Chao, chao. Gracias, Bueno, familia. gracias, gracias.